ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਮੁਕਤ ਅਜਾਨ ਅਗਿਆਨੀ। ਨਿਰਗੁਣ ਮੁਕਤ ਅਜਾਨ ਅਗਿਆਨੀ। ਨਿਰਗੁਣ ਮੁਕਤ ਅਜਾਨ ਅਗਿਆਨੀ। ਨਿਰਗੁਣ ਮੁਕਤ ਅਜਾਨ ਅਗਿਆਨੀ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। जब कछ न सियो तब क्या करता। कवन कर्म कर आया। कवन कर्म कर आया। जब कछ न सियो तब क्या करता। कवन कर्म कर आया। ठाकुर रचन रचाया। ठाकुर रचन रचाया। ठाकुर रचन रचाया। ठाकुर रचन रचाया। दया
ਅਗਿਆਨੀ ਨਿਰਗੁਣ ਮੁਕਤ ਅਜਾਨ ਅਗਿਆਨੀ ਨਿਰਗੁਣ ਮੁਕਤ ਅਜਾਨ ਅਗਿਆਨੀ ਨਿਰਗੁਣ ਮੁਕਤ ਅਜਾਨ ਅਗਿਆਨੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮਿੱਠਾ ਲਗੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮਿੱਠਾ ਲਗੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਈ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਈ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਈ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਈ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਈ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਈ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਈ ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮਿੱਠਾ ਲਗੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮਿੱਠਾ ਲਗੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਨਿਰਗੁਣ ਮੁਕਤ ਅਜਾਨ ਅਗਿਆਨੀ ਨਿਰਗੁਣ ਮੁਕਤ ਅਜਾਨ ਅਗਿਆਨੀ ਨਿਰਗੁਣ ਮੁਕਤ ਅਜਾਨ ਅਗਿਆਨੀ ਨਿਰਗੁਣ ਮੁਕਤ ਅਜਾਨ ਅਗਿਆਨੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮਿੱਠਾ ਲਗੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮਿੱਠਾ ਲਗੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਗਣਤੀ ਗਣੀ ਨਾ ਛੂਟੈ ਕਤਹੂ ਕਾਜੀ ਦੇਹ ਆਣੀ ਕਾਜੀ ਦੇਹ ਆਣੀ ਗਣਤੀ ਗਣੀ ਨਾ ਛੂਟੈ ਕਤਹੂ ਕਾਜੀ ਦੇਹ ਆਣੀ ਕਾਜੀ ਦੇਹ ਆਣੀ
ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੈ ਹਾਰੇ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਿਰਾਲੀ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਿਰਾਲੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੈ ਹਾਰੇ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਿਰਾਲੀ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਿਰਾਲੀ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਿਰਾਲੀ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਿਰਾਲੀ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਮਿੱਠਾ ਲਗੈ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਮਿੱਠਾ ਲਗੈ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਮੁਕਤ ਅਜਾਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਨਿਰਗੁਣ ਮੁਕਤ ਅਜਾਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਨਿਰਗੁਣ ਮੁਕਤ ਅਜਾਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਨਿਰਗੁਣ ਮੁਕਤ ਅਜਾਨ ਅਗਿਆਨੀ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਮਿੱਠਾ ਲਗੈ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਮਿੱਠਾ ਲਗੈ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ, ਘਟ ਘਟ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਈਐ, ਘਟ ਘਟ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਈਐ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ, ਘਟ ਘਟ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਈਐ, ਘਟ ਘਟ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਈਐ। ਤੇਰੀ ਗਤ ਮੇਤ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ, ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈਐ, ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈਐ। ਤੇਰੀ ਗਤ ਮੇਤ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ, ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈਐ, ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈਐ, ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈਐ, ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈਐ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਮਿੱਠਾ ਲਗੈ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਮਿੱਠਾ ਲਗੈ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਮਿੱਠਾ ਲਗੈ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਮਿੱਠਾ ਲਗੈ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਮੁਕਤ ਅਜਾਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਨਿਰਗੁਣ ਮੁਕਤ ਅਜਾਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਨਿਰਗੁਣ ਮੁਕਤ ਅਜਾਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਨਿਰਗੁਣ ਮੁਕਤ ਅਜਾਨ ਅਗਿਆਨੀ। ਕਰਮ
गुण गावे, मिठा लगे तेरा पाना। दया करो नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा पाना। मिठा लगे तेरा पाना, मिठा लगे तेरा पाना। वाहिगुरु। दया करो नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा पाना। जिस पातशाह का ਆਪਾਂ शहादत पुरब मना रहे हैं, इन्ने दिनों तो बहुत ही प्यार सहित रंग रस विच हाजरियां पढ़ रहे हैं। उस पातशाह के जीवन का जे निचोड़ कढ़ के वेख लीए तो सारों जिहड़ी वडेरी सिक्ख्या पातशाह के जन्म चों मिलदी, वो इन्हां पंक्तियां पूरियां च बयान की गई है। मेरे ते रहमत करो, मैं सदा ही गुण गाउंदा रहा, ते आप जी की रजा विच रह के जीवन बतीत करा। हिंदुस्तान की धरती ते बहुत पुराना एक ख्याल चले आ रहा और अज भी है। वो ख्याल की सी भी जे किसी को कोई दुख हुंदा है, कोई दुख सहना पैंदा जीवन विच, कोई कष्ट सहना पैंदा है, किसी मुसीबत का सामना करना पैंदा है, तो इहो जी धारना बनाई गई सी, अज भी है भी इनू किसी का श्राप मिलिया होया है। और अज भी है, घर च कोई प्रॉब्लम आउंदी, बच्चे नूं असीं कह दिंदे जी किसी ने कुछ कर दिता है। इदां कदी नहीं कुछ होंदा। जे इस तरह हो रहा हो किसी कष्ट का कारण किसी का श्राप है, किसी मुसीबत का सामना तां करना पिया भी किसी ऐसे व्यक्ति ने श्राप देता तां इहनूं सामना करना पिया, तो फिर पातशाह के जीवन में झाती मारते हैं तो की साबित होएगा भी गुरु जोत नूं भी जिहड़े इन्ने कष्ट सहारने पे, इन्नियां मुसीबतों का सामना करना पे, इट मीनस भी उन्होंने किसी का श्राप झेलना पे? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। असल जे तुसीं अपने जीवन में कोई नेकी कमाउणी चाहुंदे हो, कोई परोपकार करना चाहुंदे हो, जां तुहाडे मन में रीझ है भी अपना आप किसी तो कुर्बान कर दियां कौमी काम वास्ते, तो सच जाणिओ कष्ट सहने ही पैणगे, मुसीबतों का सामना करना ही पएगा। दुनियावी तौर पर भी जिस माँ के अंदर ये ममता है ना, जिस माँ के अंदर एक ख्वाहिश है भी मेरी गोद में बाल खेडे, तो उन्होंने अपनी सुंदरता कुर्बान करनी ही पएगी। ये नहीं हो सकता भी वो बाल भी खेडना चाहती होवे, गोद विच देखना चाहती होवे, ते सुंदरता नूं कुर्बान ना करनी चाहती होवे। बीज भी जब तक मिट्टी विच मिल के मिट्टी नहीं हो जाता, अपना आप मार नहीं लेंदा, अपने आप को मिट्टी के अंदर दबा नहीं लेंदा, लुको नहीं लेंदा, उन्ना चिर उहदे विचों कुछ भी नहीं पैदा हुंदा। जदों अपना आप मार के मिट्टी च लुको लेंदा अपने आप नूं, फिर उहदे विचों बूटा पैदा हुंदा है। उस ही बूटे नूं फिर कुछ फुल लगदे ने, फल लगदे ने, ते ओहो ही फल एक दिन किसी की तरक्की का कारण बनते हैं। ये टल सच्चाइयां ने, इदां हो ही नहीं सकता। रूहानी तौर पर जिन्ना पुरखा ने उचेरियां उडारियां मारियां, उन्हां दी भी कैटागरी है। पहली तरह के लोग वो जिन्होंने शरीरक कष्ट किते झलने पे, तो उन्हें सबर किया। दूसरी तरह के वो लोग सी जिन्होंने किते कष्ट झलने पे, तो उन्होंने शुक्र किया। सबर तो शुक्र च बड़ा फर्क है। पर जिहड़ी पातशाह ने तस्वीर पेश की, वो सब तो उचेरी सानू माण होना चाहिए। रूहानी की दुनिया में ऐसी उचेरी उडारी किसी ने मारी नहीं, ना को मार सकेगा। वो की सी? भाणा मनना ते आत्म समर्पण कर देना, आप चल के जाना।
ये बड़ी वड्डी गल है। गुरबाणी च महाराज बख्श करदे कहंदे उन्हां दी अवस्था कैसी बन जाती, दुख ना ही सब सुख ही है रे। एक है एक ही नित है। जिसने कभी प्रभु मिलाप हासिल कर लिया किते, जिसनों उसकी रहमत प्राप्त हो गई, कहते उन्होंने फिर कभी कोई दुख पाउंदा ही नहीं, उन्होंने महसूस ही नहीं होता चाहे जिन्ने मर्जी दुख दिते जा रहे हों। उस अंदर ऐसा आनंद सदा लई खेड़ा बनया रहिंदा है भी वह हर थां अपनी अखां नाल रब नूं देखदा, कायनात दे जरे जरे विच उसनूं महसूस करदा है। बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जित है। उसनों कोई बुरा मनुख नहीं जापदा, कोई बेगाना जापदा ही नहीं। ये जिन्नियां भी विचारां कर रहे सारियां पातशाह के जीवन च तुहानूं झलकियां नज़र आउंदियां, ना कोई बैरी नहीं बेगाना, उसनूं कोई दिसदा ही नहीं बेगाना, सब अपने ही दिखते हैं। तो कहते फिर जिस मनुख की ऐसी अवस्था बन जाती है ना, फिर विषय विकारां दे टाकरे ते हमेशा जित ही प्राप्त करता, हार नहीं सब जित। तुसीं देखो आम तुसीं जिंदगी विच किसी वहंदे पानी दे किनारे तुरे जाओ, मैदान विच मान लो कोई दरिया वग रहा है मैदानी इलाके विच, तो तुसीं उहदे किनारे किनारे सैर करते जाओ, पानी एक रस बह रहा है, टिकाव विच है, कोई उछाल नहीं, तो तुहानूं खिंच नहीं पाएगा, चाहे तुसीं रोज़ ही उसके आले दुआले सैर करते रहो। खिंच कदों पाएगा? जदों कोई चट्टान रस्ते च आएगी, वो पानी उस नाल टकराएगा, पानी उत्ते थल्ले होएगा, उहदे विचों एक ऐसी आवाज़ पैदा होएगी, ऐसा सीन तुहानूं देखण नूं मिलेगा भी तुहाडीआं अखां ये चाहणगियां भी इत्थे रुक के मैं सीन नूं देखां, दृश्य नूं देखां। पानी वो सी, दरिया वो सी, सालां बधी आपां उत्थों किनारे तो तुरते गए, कभी महसूस नहीं की आवाज़, ना कभी उस घटना ने सानू खिंच पाई, क्योंकि एक सार जीवन चल रहा ठहराव विच। पर उस विच निखार कदों आया? जदों उस चलते पानी दे रस्ते विच कोई चट्टान आई, चट्टान नाल टाकरा होया, तो उस चट्टान ने फिर की कीता, एक राग पैदा किया, एक ऐसा दृश्य देखण नूं जी करन वाला वो दृश्य पैदा किया। इंसानी जिंदगी विच वो बहुत वड्डा दरिया है, बहुत वगदा वहन है। एक सार चली जाए तो इंसान को कुछ महसूस नहीं होता, पर कोई ऐसी जीवन विच घटना वापरी होवे जिसने उस चलते वहन विच रुकावट खड़ी की होवे, कोई ऐसी मुसीबत आवे तो उस शख्स ने फिर उसका मुकाबला डट के किया होवे, वो घटना तुहानूं सता जिंदगी जीवन याद रहेगी। वो घटना तुहानूं इन्नी स्वादली लगेगी, इन्नी वडमुली लगेगी, इन्नी प्यारी लगेगी भी तुहाडा अखां सामने दृश्य लिया के महसूस करन नूं जी करता रहेगा। पर कदों? जदों जीवन विच कोई मुसीबत ऐसी आई, कोई टाकरा होया, तो फिर वो दृश्य देखण योग बनिया। ये भी नाल है गल, टक्कर जितनी वड्डी होवेगी, जिन्नी सख्त होएगी, उन्नी वधीक उस विच उन्नी चमक पैदा होएगी, जिन्नी वड्डी टक्कर होएगी। गुरु कृपा करे जिस किसी इंसान नूं ऐसी किते घटना दा सामना किते करना पिया, तो जगत के इतिहास विच उही जीवन फिर रोशन होए ने, रोशन मनारे बन के आ चमक रहे हैं। हाँ, पातशाह का जीवन साढ़े सामने एक इतिहास है। किसी भी कौम के इतिहास में, किसी भी देश के इतिहास में उही हिस्सा हुलारा देने वाला हुंदा है, उही घटना एक हुलारा देने वाली हुंदी है, जिथे किसी कौम ने, देश ने अपने राह विच आईयां रुकावटां नूं मरदाना ढंग वांगू अपनाया होवे, उहदा मुकाबला कीता होवे मर्दां वांगू। उही घटना कौमां विच इतिहास बन के रह जांदी है। तो जिस पातशाह दा आपां पुरब मना रहे हैं, शहादत नूं याद कर रहे हैं, पातशाह दे जीवन विच सारियां वडियाइयां सी।
ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਤਾਂ ਸਫਲੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਢਾਲ ਲਈਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਢਾਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਓਨੀ ਓਨੀ ਰਹਿਮਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂਘ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਅਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਝੋਲੀ ਅੜ ਕੇ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੜਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟ ਸਕਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਬੰਬੇ ਗਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਵੀ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਅੱਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਲਤਾ ਜੀ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਨਾ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੰਗੀਤ ਸਮਰਾਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੁੱਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੇ ਬੈਠੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ 1.5 ਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਕੇਸ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਗੁੱਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਬੌਰਨ ਹੈ ਇੰਦੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ। ਤੇ ਇੰਦੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਹੱਲਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਹੱਲਾ। ਲਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇੰਦੌਰ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗਲਾ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾਪੁਰ ਮੂਵ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਦਿਆ ਗੁਰੂ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗੀਤ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾਪੁਰ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੱਲੇ ਬੰਨੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਹੱਲਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁੰਜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਐਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਿੱਤੇ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਸਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਰਾ ਸੀਸ ਤੇ ਚਲਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀ,
ता जिंदगी केसां की बेअदबी ना करी, जीवन का कोई ऐसा मुकाम नहीं जिहड़ा तेरे चरना च आके ना ढेरी हो जाए, जिसनूं तू प्राप्त ना कर सके। तो कहते कोई ऐसा मुकाम नहीं जीवन का, कहते हुण तो इच्छा ही कोई नहीं रह गई। कहती मैं गल पल्ले बनी, तो नाल ही भाई साहब कहते भी मेरा सिर शर्म नाल नीवा हुंदा जावे, भी केवल ना सिखा मुहल्ला सी ते उस मुहल्ले च पैदा होई तो उन्हें ता जीवनों गल पल्ले बन ली। तो साढ़े घरां विच सिखां घरां विच जम के साडियां बच्चियां, माफ़ करना मैं कौड़ी सच्चाई कहण लगा, क्योंकि चौकीदार आ, इत्थे बैठ के समझौता नहीं किया जा सकता। अज बहुतात सानू ऐसे गृहस्थी मिलते हैं, कहणगे जी साडियां बच्चियां कहंदियां असीं विआह क्लीन शेप बच्चियां ना कराउणा, सिखां दियां बच्चियां इत्थे आके खड़ गए। असीं इन्नी गिरावट आ गई साडे ते मानसिक तौर पर, और असीं समझौता करी जा रहे हैं। मैं नहीं कहता बच्चों को कुटो मारो, इत्थे तो कल्चर ही नहीं, हत्थ भी नहीं ला सकते आपां, पर प्यार नाल घरां विच माहौल ऐसा क्रिएट करो भी उन्हां दी जबान ते शब्द ही ना आउण भी मैं क्लीन शेव नाल विआह कराउणा। घट्टो घट्ट सिखां दियां बच्चियां सिखां नाल ते मैरिज कराउण ना। मैं नहीं कहता अमृतधारी होवे, अमृत कोई एडी छोटी मोटी वस्तु नहीं भी जिहड़ी हाई माई किते आपां नूं मिल जानी है। अमृता जदों तुहाडे अंदरों हो उठेगी फिर अमृत छकोगे तो ता जीवन उसनूं पाल भी लओगे। घट्टो घट्ट सिੱਖੀ ਸਰੂਪ तो आपां घरां च रखीए ना, तो घरां च किद्दां रहना है। अज साडे च घाट है इत्थे, मैनूं अक्सर है क्योंकि मैनूं 20 साल हो गए, 22 साल इन्हां मुल्कां च आउंदिआं नूं। मैं की देखदा, पिता क्लीन शेव होएगा, छोटा जिहा बच्चा होएगा, ਉਹਦੇ पटका बड़ा सवार के बन्निया होएगा। बड़ी पुरानी गल है, 97 च मैं पहली वारी कनेडा आया। अज बड़ी खुशी है मैनूं, मेरे हमसफर भाई भुपिंदर सिंह जी, ये भी उदों एज ए कीर्तनीए पहली वारी कनेडा आए सी, तो पहली बारी इन्होंने मेरे इत्थे बेटा इन्हों का जॉब करता जोड़ा, तो मैं कुदरती बाहर जिदा मैनेजर साहब बैठे पैसे रसीद कट्टण लई उत्थे बैठा सी। आया भी मैं पहली वारी, तो सुभाव मेरा उदों भी स्ट्रेट फॉरवर्ड जा, तो हुण भी गुरु तो डरो, गुरु ते भरोसा रखो, बंदियां तो डर कोई बाली गल नहीं। वध तो वध कुछ ना सदू ना सदे किहड़ी गल, ये तो कुछ नहीं कर सकते। एक क्लीन शेव बंदा नाल उहदी वाइफ ते एक बच्चा, ते बड़ा सोहना जिहा पटका बन्निया जूड़ा किया, तो उन्हें आके $11 मैनेजर को दे के कहन लगा जी अरदास कराउणी है भाई साहब जी कोलों भी बच्चे को सिक्खी की दात मिले, बच्चा सिक्खी च परपक्क रहे। मैं लागे बैठा सी, मैं सज्जणा 11 छड्ड के 1100 की भी अरदास करा ला, ये गल बननी नहीं। कहता भाई साहब ये की कह रहे हो? मैं भी 16, 17, 18 साल तक तो तेरी मान लू, जिदने अपने पैरों तो हो गया, जिदने ने तेनों सवाल किया ना भी पापा जे केस रखने इन्ने जरूरी है तो तुसी क्यों कतल करवाए हुए, तो मैं कि इस सवाल का तो जवाब दे नहीं सकना, तो ना ये गुरु नूं गल मनण योग है ना पाउंदी है। हाँ मेरे वर्गे तो 11 जेब च पै जाण ते वखरी गल है, मैं तो कर देनी है, मैं तो कह दूँ जी इदा ही रवे, पर एक गल बननी नहीं, क्योंकि गुरु साडा इयाणा नहीं सियाणा है। उन्होंने उस वे तो बड़ी तकलीफ हुई, थोड़े दिन बाद मैनूं दुबारा मिलिया तो उन्हें केस रखने शुरू कर ले सी। मैं सज्जणा कोई गल नहीं, कनीन कौड़ी होंदी है, बुखार ठीक तां ही हो जे अंदर जाऊगी, तो जे मैं ना तेनों कहता दूजे रागियां को मैं भी मिट्टी जी गोली दे के तुर जाता तो मैनूं कोई फर्क नहीं सी पैना। पर मैनूं खुशी है भी जे तू इन्नी क टकोर नाल ही वापस मुड़ आया। गुरु कृपा करे समा हो गया, एक शब्द आप सारे ही रल के जिस विच महाराज ने पंचम पातशाह की बाणी आप सुखमनी साहिब पढ़ते हैं, प्रभ की आग्या आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावे। आओ 2-4 मिनट भी इन्हां पंक्ति नूं अज दे कीर्तन उपदेश विचों इन्नी क गल पल्ले बन के जरूर लैके जाओ भी गुरपुरब मनाउणे तां ही सफले जे घट्टो घट्ट जो उपदेश सुनते हैं उन्होंने जीवन च कमाउणा शुरू कर दिए, फिर ये गुरपुरब मनाउणे सफले। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै,
जीवन मुक्त सो कहावै, जीवन मुक्त सो कहावै, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, जीवन मुक्त सो कहावै, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, प्रभु की आज्ञा। तैसा हरख तैसा उस सोग, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, जीवन मुक्त सो कहावै, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, प्रभु की आज्ञा। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, जीवन मुक्त सो कहावै, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, प्रभु की आज्ञा। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, तैसा रंक तैसा राजान, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, जीवन मुक्त सो कहावै, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, प्रभु की आज्ञा। जो वर्ताए साई जुगत, जो वर्ताए साई जुगत, नानक ओह पुरख कहिए जीवन मुक्त, नानक ओह पुरख कहिए जीवन मुक्त, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, जीवन मुक्त सो कहावै, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै,